Very good afternoon, friends, and welcome to Advanced Marketing Management session. Friends, in AMM, since we are discussing research since very long, right? And as I said, that research consists of your total 50% of the syllabus, right? So basically, in research we have discussed about many things, and in last session we have discussed about sampling decisions, right? We have discussed about there are two types of samples or sampling decisions, that is probability sampling method and non-probability sampling method, right? And we have discussed both the decisions in detail. So now today, if you remember that I say that whatever we are discussing as of now, that is survey method se leke, starting from survey method, observation, scaling technique and sampling decision and everything, everything is related to primary data collection. Because see, if we are doing secondary data or if we are using secondary data, then secondary data does not require any any sampling. Secondary does not require any scaling technique, measurement technique, survey, questionnaire. Secondary data में ये कुछ नहीं होता, because secondary data is actually already available. So we did not we are not required to take such pain to do all this. But if we are using primary data in the research, which is advisable also, then all this decisions comes into the picture, right? So now today we are going to talk about one of the very important topic in research, and that is questionnaire design, right? Because whenever you are doing any kind of research, whenever you do, you are supposed to frame a questionnaire, right? Because without questionnaire, collection of the data would be difficult, because questionnaire is a tool to collect data. Questionnaire क्या है? Questionnaire definition में तो हम जाते हैं, but questionnaire is actually a tool, right, which helps in data collection. So questionnaire के बिना प्राइमरी डेटा में डेटा को कलेक्ट करना would be little difficult, right? No doubt there are other tools also available in the research apart from questionnaire. Questionnaire के बदले और tools भी है, but questionnaire is very popular. मतलब I would say that 90% of the research which are done are with the help of questionnaire only. So questionnaire is a very important tool. It's a tool to collect data, right? Okay, now what is a questionnaire? Simple definition, the most simplest definition says that questionnaire is a formalized set of questions for obtaining information from the respondent. It's very simple, right? It's a set of questions, right? It's a formalized set of questions, right? The questions asked in a formal manner, right? Question asked in a proper systematic manner, right? So that we can get the information from the respondent, and that formal information that we are using, right, or that we are asking is known as questionnaire, right? So basically questionnaire matlab simple language में if I say, then it's a questionnaire is a list of questions, right? The simplest thing is questionnaire is a list of questions. Okay, now what does a questionnaire do actually? So questionnaire translate the list of needed information. Questionnaire translate the list of needed information into specific questions that respondent will or can answer. Questionnaire का रोल क्या है बेसिकली? क्वेश्चनर का मतलब क्या बोला? तो मैंने बोला क्वेश्चनर मतलब सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, राइट? इट्स सेट ऑफ क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन को एक साथ में डालते हैं तो क्वेश्चनर बनता है, राइट? बट क्वेश्चनर का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्वेश्चनर? सो क्वेश्चनर डज व्हाट? तो क्वेश्चनर ट्रांसलेट द नीडेड इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च में हमें जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, कंपीटिटर स्ट्रेटजीज हो गई, या मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है वो हो गया, मतलब वॉट एवर. वी नीड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रिसर्च. So whatever information is required in research, this information is translated into question, right? And these questions will be answered by the respondent. तो questionnaire का एक major role जो है ये है कि the questionnaire helps in
translating the needed information into question, and that question will be answered by the respondent, right? So questionnaire means a set of question that the respondent will answer. ओके अब ये तो समझना बहुत ईजी है कि क्वेश्चनर मतलब set of question that will be asked by the that will be answered by the respondent, and this information will be help in the research. That is fine. लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज डिज़ाइनिंग क्वेश्चनर. मतलब सी ऐसा नहीं क्वेश्चनर ऐसा नहीं है कि मन में आए कोई भी क्वेश्चन डाल दिया, राइट वो उसको क्वेश्चनर नहीं बोलते हैं. दैट इज़ नॉट अ राइट क्वेश्चनर to be used in research. So questionnaire design मतलब making a questionnaire is a science, right? Making a questionnaire is an art. So making a questionnaire is a science and art, right? Which everyone knows, or everybody should knows rather. Not everyone knows. Everybody should knows. At least every researcher should know, right? कि questionnaire design is not just putting any kind of question कोई भी question डाल दो तो questionnaire नहीं बनता है, right? It's an art and science that a researcher should know. So today we are going to take up this topic in detail, and that is known as questionnaire design process. No doubt it's a bit lengthy step process, but it's very important. And you have to draw this chart. Keep this chart with you, right? And draw this chart. This is very important chart, right? Questionnaire design process, right? Starting from specify the list of needed information to eliminate the bugs by pre-testing. So let's discuss all the topic, each step in detail. There are many steps, as you can see, right? Almost 3 and 6 and 9 and 10. Right, it's a 10-step process and a very important process. So let us start with the process in detail, right? And as you can see, it's a long process. It will take time, right? And this questionnaire design process also involve many different types of questions too. All right, many different types of examples are also there in this process, right? So let's begin with the first step of questionnaire design process. As you can see, the first step of questionnaire design process is specify the list of needed information, or specify the needed information, right? सबसे पहले see this is a very common step, this is a very basic step of any research, that as a researcher we should first सीधा नहीं, मैंने जैसे ही बोला कि वी आर नॉट सपोज टू फ्रेम द क्वेश्चनर डायरेक्टली, बैठ के सीधे क्वेश्चन डालने नहीं शुरू करने हैं, राइट? द फर्स्ट थिंग इज रिसर्चर शुड लिस्ट डाउन दैट व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द डेटा, राइट? और व्हाट आर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले, right, we have to list down the information that is required to satisfy the research objective, right? Because जब हम जब रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाना, राइट? इफ़ यू जस्ट गो बैक द रिसर्च प्रोसेस, यू वुड नो कि रिसर्च के ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट? एंड टू सेटिस्फाई दोज ऑब्जेक्टिव वी नीड वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन, isn't it? Just take an example. Okay, suppose your research objective is to know the consumer behavior regarding towards mobile phones, right, or handsets. अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि यू वांट टू नो द कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स मोबाइल हैंडसेट, राइट? अब उसके लिए आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? सी, दिस इज़ वन ऑब्जेक्टिव, right? But to satisfy this objective you need a variety of information. जैसे you need information like sorry, you need information like what kind of brands consumer prefer. You need information like what type of price consumer is ready to pay, right? You need information like from where consumer like to buy, online or offline. If offline, then what are the stores or what are the channels? If online, then what are the apps or what are the stores available online, right? Suppose what brands are preferred by the consumer,
what price consumer is willing to pay, which factors affect the consumer buying decision. मतलब when consumer is buying mobile, right, consumer get influenced by advertisement, or consumer get influenced by friends, or consumer get influenced by offers and discounts. So see, this is, I mean, I can make a long list of it, but just one objective, imagine, right? Understand that one objective needs a detail this set of information, right? तो research के तो बहुत सारे objective होते हैं. One research may have variety of different objective. So when in the first step you have to list down all the detailed objectives, right, of all the objectives of your research, as well as you have to list down all the needed information to satisfy the objective, right? Because see, okay, now the question is कि why to make a list of needed information, right? काफ़ी बार ऐसा आता है ना कि यार we are doing research, why to make a list of information, we know already, we know that what kind of information is required. No, list is made, right? Specification of the information is required because we may not forget any small information while making the questionnaire, right? ऐसा होता है, हमें बहुत सारा पता होता है, we know many things, but while we are putting it into the paper, काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती है, right? तो क्वेश्चनर बनाने से पहले make a detailed list of information which is required, and list down even a smallest information required. आपको अगर लगे कि हाँ this is a very minute, that's fine, नहीं लिखो, right? Specify that what information are required, right? You may require consumer taste, age, income, gender, occupation, ये information शायद चाहिए. You may require consumer like taste and preferences. You may require factors influencing consumer decision. You may require information related to the preferred channel to purchase the mobile. तो बहुत सारे ऐसे information है जो आपको चाहिए, and make a list of it, right? So the first step is specify the information needed, right, to achieve or to satisfy your research objective. Number one. Is it clear? Okay. Number two is specify the type of interview method, right? Specify the type of interview method. क्यों? See, why you need to specify the type of interview method. Understand? चलो पहला तो हो गया कि इन्फॉर्मेशन कौन सी चीज़ उसका एक लिस्ट बना दो. नाउ द सेकंड इज specify the type of interview method. In the sense, what here we have to decide, here we have to here we have to keep it in mind that which information or which interview method will be used to collect the information. अब interview method मतलब क्या? तो here we have to specify, here we have to decide that are we going to use personal interview, are we going to use telephonic interview, are we going to use electronic interview method, or are we going to use mail questionnaire method, right? जो चार मैंने discuss की थी, right? There are four basic method and these four are very popular, right? Personal interview, telephonic interview, mail questionnaire, online interview या electronic interview, right? तो हम कौन सी use करने वाले हैं? See, एक रिसर्च में चार तो एक साथ यूज़ नहीं होगी, शायद दो हो सकती है. Many research uses two techniques, but all is not possible. But preferably एक technique is very popular, that generally research uses only one technique, right? अब see, what I'm trying to tell you is कि specify the interviewing method, मतलब decide that which method of interview you are going to use in the research. क्यों? Why? Because each interview method requires different format of questionnaire, right? हर इंटरव्यू मेथड में क्वेश्चनर का जो फॉर्मेट होता है, और इवन नॉट ओनली क्वेश्चनर, क्वेश्चंस के फॉर्मेट भी डिफरेंट होते हैं. अंडरस्टैंड दैट एवरी इंटरव्यू मेथड हैज़ और एवरी इंटरव्यू मेथड रिक्वायर्स डिफरेंट क्वेश्चन एज वेल एज डिफरेंट क्वेश्चनर फॉर्मेट. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज इफ यू आर यूजिंग पर्सनल इंटरव्यू, राइट, देन you can have long questionnaire, right? You can have long questions, you can ask complex questions, you can ask difficult question, because it's a personal interview. आप सामने बैठे हो, आप you can ask the difficult question, you can ask the complex question, you can ask rating question, you can ask scaling questions.
हो सकता है, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू है, राइट. यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर, आई एम सॉरी, यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रिस्पॉन्डेंट एंड यू विल कलेक्ट द डेटा. तो अगर रिस्पॉन्डेंट को कोई इश्यू आ रहा है, रिस्पॉन्डेंट को प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज रिस्पॉन्डेंट क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, तो यू आर देयर, राइट. आप उसको समझाओगे, बिकॉज इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू मैथड. लेकिन suppose if you are using, let's say if you are using a telephonic interview, right, तो telephonic interview में you cannot have long questionnaire, right, you cannot ask 20 questions on telephone, right. telephonic interview में questionnaire भी छोटा होता है and even questions भी छोटे होते हैं. you cannot ask very long question. एक question 40-50 वर्ड का नहीं पूछ सकते या 15-20 वर्ड का नहीं पूछ सकते. try to keep the questions as well as questionnaire as short as possible, right, in telephonic interview, right. Suppose if you are using mail questionnaire or if you are using electronic method, the questionnaire can be long, but you cannot ask difficult question, right. You cannot ask complex question because then you will not be there, researcher will not be there in front of respondent. तो अगर रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिस्पॉन्डेंट को क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा, राइट, तो क्वेश्चनेयर वो फिलअप ही नहीं करेगा, अंडरस्टैंड, राइट. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड कि आप विच मैथड ऑफ इंटरव्यू विल बी यूज बाय द रिसर्चर, राइट. इफ इट इज़ पर्सनल इंटरव्यू, right, then personal interview has a different set of questionnaire required or different type of questionnaire can be designed for personal interview. If it's a telephonic interview, then again different type of questionnaire will be designed in telephonic interview. If it's a mail questionnaire, yeah, electronic method, then electronic method and mail questionnaire requires separate kind of questions and length of questionnaire would be different, right. तो जैसे मैंने बोला कि अगर personal interview है तो questionnaire length can be long, राइट, बट बाकी के 3 में क्वेश्चनेयर की लेंथ कम होनी चाहिए एंड टेलीफोनिक में तो लेंथ विल बी मिनिमम, राइट. जैसे मैंने बोला कि यू कैन नॉट आस्क डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू या मेल क्वेश्चनेयर बिकॉज देन द रिस्पॉन्डेंट विल नॉट रिस्पॉन्ड. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, देयर आर मेनी थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड while we are collecting the data. तो ये सब चीज़ें depends on what, this all things depends on which interview method are used or will be used by the researcher, right. Because as I say that every interview method has its pros and cons. सारी interview method के कुछ pros और cons होते हैं. तो जब हम questionnaire design करते हैं, right, when we are deciding the questionnaire, we should keep all the pros and cons of each interview method in mind, right. सारी interview method के pros and cons दिमाग में रखने हैं and then based on that we have to design the questions, right. Okay, now तो पहला ये हो गया, list the needed information, make a list of the information required कि हमें क्या क्या information चाहिए. दूसरा ये हो गया कि हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी इंटरव्यू टेक्निक कौन सी है, बिकॉज इंटरव्यू टेक्निक विल डिसाइड लेंथ ऑफ क्वेश्चनेयर, लेंथ ऑफ क्वेश्चंस एंड nature of questions or type of questions, right. कि interview technique will decide what, तो interview technique will decide length of questionnaire, length of questions, nature of questions और type of questions, right. तो इसके लिए हमें ये interview method को भी specify करना होता है, right. Now third step, determine कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन. अब थोड़े टेक्निकल एरिया में हम एंट्री ले रहे हैं, तो इसके लिए आई गो विद द अदर पीपीटी, राइट, जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, राइट. सो अब थर्ड स्टेप इज डिसाइड द कंटेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्वेश्चन. अब क्या है, अब हम क्वेश्चन बनाने के स्टेज में जा रहे हैं, राइट. अब तक पहले तो हमने प्लानिंग कर लिया कि हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, तो दैट प्लानिंग इज डन. नाउ इन द थर्ड स्टेप विल डिसाइड द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन. नाउ व्हाट विल बी देयर और व्हाट शुड बी देयर इन ईच क्वेश्चन, राइट. हर एक क्वेश्चन का कंटेंट कैसा होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन should be there in the question. So now we are going to decide the content of individual question, that what will be the information that should be asked in individual each question, right. So iske liye let's move to the other PPT. Just a minute.
Just hold on, it's loading. Okay, now for that, this is a Naresh Malhotra PPT I have, जो आपकी reference book है. Okay. Yes. Now see, the third step as I see it is decide the individual content of the question or decide the individual question, right? अब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए. नाउ व्हेन वी आर डिसाइडिंग द इंडिविजुअल क्वेश्चन वी हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड, राइट. जब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन का कंटेंट डिसाइड करते हैं, राइट, कि एक क्वेश्चन के अंदर क्या होना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट, इज़ द क्वेश्चन नेसेसरी, राइट. काफ़ी बार ऐसा होता है, राइट, कि यू नो sometimes you are asking a question which is not at all related with the research, right, or it has nothing to do with the research objective or hypothesis or list of needed information. कुछ नहीं होता है. काफ़ी I have come across many questionnaire wherein they ask what is your hobby. क्या काम है? I don't understand what is the need of this, right, कि भाई what is your hobby. It is useless. आप पूछ रहे हो कि suppose you are doing research on let's say eating, edible oil preferences of the housewives. Yeah, you are doing research on जैसे मैंने बोला कि मोबाइल, right. अब brand features and price and factors and hobby पूछने की क्या ज़रूरत है? I don't understand, right. कि काफ़ी बार एक मोबाइल हैंडसेट का सर्वे देख रहा था, उसमें पूछा था कि what are the social media accounts that you have or you are using. ठीक है, यू आर आस्किंग अबाउट हैंडसेट, यू आर नॉट आस्किंग अबाउट द इंटरनेट यूसेज, राइट. अब हैंडसेट के बारे में पूछ रहे हो, सोशल मीडिया में वो फेसबुक पे है कि नहीं, वो पूछने का काम क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड. बट स्टिल पीपल कीप ऑन पुटिंग द क्वेश्चन जस्ट लाइक ऐसे ही विदाउट नीडेड. सो रिमूव दिस साइड ऑफ क्वेश्चन विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विथ योर रिसर्च, राइट. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी एलिमिनेटेड. नंबर 1. तो पहला मैंने बोला कि जब हम क्वेश्चन का कंटेंट डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, तो उस टाइम पे पहले ये देखो कि इज़ द क्वेश्चन नेसेसरी, राइट. इफ़ यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन, राइट, देन just try to see whether this question is related with our hypothesis, whether this question is related with our objective. If not, throw it out. Number 1. तो पहला ये देखो कि इस क्वेश्चन necessary. If it is not necessary, ज़रूरी नहीं है, then eliminate it, remove it. Second thing that you should keep in mind is, are several question needed in place of one. काफ़ी बार ऐसा होता है. Many times it happen कि क्वेश्चनर किसी ने बोला था कि क्वेश्चनर छोटा रखना है, अंडरस्टैंड. तो हम क्या करते हैं, और many times what a researcher does to keep the questionnaire short, he try to ask a question, right, which is asked in a wrong manner. क्यों? क्योंकि क्वेश्चनर छोटा करना है. तो क्वेश्चनर छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 2-3 क्वेश्चन फॉर्म करने के बदले हम एक क्वेश्चन में डाल कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, राइट. सो समटाइम्स होता है, समटाइम्स 2-3 क्वेश्चंस आर नीडेड टू ऑब्टेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन, एंड समटाइम्स इंस्टेड ऑफ 2-3 क्वेश्चन वी फॉर्म इट इन अ वन. क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 2-3 अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चनर लंबा हो जाएगा, एक पूछ लेते हैं. तो दिस इज रॉन्ग, अगेन दिस इज रॉन्ग. सी, if 2-3 questions are required, then we have to ask 2-3 questions, right. Then don't try to form it in a one question, right. So this is wrong. एक सबसे बड़ा एरर जो हम लोग काफ़ी रिसर्चर फॉलो करते हैं, या मिस्टेक जो है जो काफ़ी रिसर्चर करते हैं, दैट इज दे आस्क अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज अ डबल बैरल्ड क्वेश्चन? जैसे ऊपर वाला देखो, ये एग्जाम्पल है. डू यू थिंक कोका कोला इज टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक? अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं. कोका कोला फॉर मी it may not be tasty but it may be refreshing, or it may be tasty but it may not be refreshing. जैसे एक एग्जांपल है कि do you think
मैगी इज टेस्टी एंड हेल्दी. अब सी मैगी कैन बी टेस्टी बट इट मे नॉट बी हेल्दी. तो इसके दो आंसर है. इज इट टेस्टी? यस. इज इट हेल्दी? नो. तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर नोन एज डबल बैरल्ड क्वेश्चन. व्हाई वी कॉल इट डबल बैरल्ड क्वेश्चन? डबल बैरल्ड मीन्स टू और मोर क्वेश्चंस आर कंबाइंड इनटू वन, राइट. जैसे हो गया ना कि टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग. तो दो क्वेश्चन, एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछने वाले थे. क्या था कि कोका कोला इज टेस्टी ड्रिंक, दैट वन क्वेश्चन. कोका कोला इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन. जैसे मैंने बोला कि मैगी इज टेस्टी, वन क्वेश्चन. मैगी इज हेल्दी, सेकंड क्वेश्चन. तो हमने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया. क्यों? क्योंकि हमको ये लगा कि दो पूछने से बेटर है हम एक क्वेश्चन में निपटा देते हैं, एंड दैट इज रॉन्ग, राइट. तो जस्ट सी इफ 2-3 questions are required in place of one, then don't follow this error, right. Don't form any kind of double barreled question. And what is double barreled? Double barreled means two questions are combined into one. एक question, दो question को एक में हम कर देते हैं, that is double barreled. And double barreled is a wrong system, right. तो जब हम इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट देख रहे हैं, when we are deciding, when we see that what should be the content of the individual question, right, तो उसमें दो चीज़ें देखनी चाहिए. एक, is question necessary? If it is not necessary, remove it. And second, हमें ये देखना चाहिए कि are several question is required or one question is required. हमें ये देखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करने के लिए, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए हमें 2-3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे या एक क्वेश्चन में हो जाएगा. सो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट. जस्ट सी वेदर सेवरल क्वेश्चंस आर रिक्वायर्ड इन प्लेस ऑफ वन और नॉट, राइट. सो दैट इज डिसाइडिंग द इंडिविजुअल कंटेंट, राइट. नाउ द फोर्थ स्टेप इज overcoming the inability to answer. काफ़ी बार ऐसा होता है that respondent, okay, जब हम questionnaire डिज़ाइन करते हैं, understand, when we are designing the questionnaire, we have to see that whether respondent is able to answer the questions or not, because we have to remove, we have to eliminate certain questions which a respondent will not be able to answer, right? So हमें we have to ensure that the respondent must be able to answer certain question, right. And okay, now the question is कि how to overcome the inability to answer, right. हमारा step number 4 जो है, that is overcoming the inability to answer, right. हमें ये देखना है कि whether respondent is able to answer the question or not, right. अब in what condition, अब समझो कि जैसे मैंने बोला कि we have to see whether the respondent is able to answer the question or not. तो पहले ये देखो ना कि in what situation respondent will not be able to answer, right. What are the situation when a respondent will not be able to answer the question, समझे. तो अब आप अपने आप को एज अ respondent समझ लो, right. Suppose you are a respondent and think yourself that what are the situations when you may not be able to answer the question. तो पहली सिचुएशन है कि respondent may not be informed. काफ़ी बार ऐसा होता है कि we are asking certain question to a respondent about which he is not informed, right. जैसे आपको पूछा कि what is the, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, I'm sure, right. Suppose आपको पूछा जाता है कि what is your domestic household expenses, right, behind necessities, घर की जो necessities है ना, milk and fruits and vegetable and grains and pulses and all those, उसके पीछे महीने का खर्चा कितना है, right. तो you may not be you will not be able to exactly answer this, right. So do not ask a certain question about which respondent is not informed, right. कि आपको जिसके बारे में पता नहीं होता है, right. What is your opinion about your father's job involvement level? You will not be able to answer, right. तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है which a respondent is not aware about it, right. And do not ask such kind of question, right. So
इनकमिंग द ओवरकमिंग द इनएबिलिटी टू आंसर, हम जब ये चेक करते हैं कि whether the respondent will be able to answer or not, तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि is respondent informed about certain things. If respondent is not informed about certain things, that then do not ask some such questions. Number one. Second, in second thing that we should keep in mind while overcoming the inability to answer is can respondent remember. काफ़ी बार ऐसा होता है कि we are asking a certain question which respondent is not able to answer properly. जैसे आपको पूछा जाए कि what you had in meal on let's say 31st आज हुई ना, what you had in meal on 30th September, right? Yeah, मतलब you are asking certain question which a respondent is not able to remember properly, right? आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो रिस्पोंडेंट सीधा याद नहीं कर सकता. जैसे इसको पूछा ना, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. अब ये ठीक है, मतलब हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक या हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क यू हैड, और आपने कितनी बार सपोज ये सारी चीज़ें इफ़ यू आर आस्किंग टू द रिस्पोंडेंट, राइट, देन इट इज़ इनकरेक्ट. हाँ, जैसे आप ये पूछते हो, देखो कि हाउ मेनी गैलन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक डिड यू कंज्यूम ड्यूरिंग लास्ट 4 वीक्स. एक महीने में कितना सॉफ्ट ड्रिंक पिया, तो शायद वो ठीक से नहीं बता पाएगा. बट उसके बदले में आप ये पूछो कि हाउ ऑफन डू यू कंज्यूम द सॉफ्ट ड्रिंक इन अ वीक, राइट, लेस देन वंस इन अ वीक, 1 to 3 times इन अ वीक, 4 to 6 times a week, 7 times और मोर देन पर वीक. तो ये दिस इज द राइट मैथड, तो वो शायद रिप्लाई कर पाएगा. अंडरस्टैंड? सो दैट इज ओवरकमिंग द इनएबिलिटी टू आंसर. जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखना है कि वेदर रिस्पोंडेंट इज एबल टू आंसर और नॉट, राइट, एंड देन हमें ये देखना है कि व्हाट आर द सिचुएशन व्हेन रिस्पोंडेंट इज नॉट एबल टू आंसर. तो पहली सिचुएशन ये थी कि रिस्पोंडेंट को उसके बारे में पता नहीं होता है, रिस्पोंडेंट इज नॉट अवेयर. दूसरी सिचुएशन ये है कि रिस्पोंडेंट इज नॉट एबल टू रिमेंबर, राइट. हम काफ़ी ऐसी चीज़ें पूछते हैं विच ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर प्रॉपरली, राइट. तीसरा, रिस्पोंडेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड. आर्टिकुलेट करना मतलब प्रोवाइड करना. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको नहीं बता सकता, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, राइट. तो हम जैसे रिस्पोंडेंट मे नॉट बी अनएबल टू आर्टिकुलेट सर्टेन टाइप्स ऑफ रीजंस, describe the atmosphere of the department store, या respondent should be given aids such as pictures, maps. मतलब basically respondent कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो describe नहीं कर सकता, right. Subjective things which cannot be described, right. हम पूछते हैं कि कैसा स्टोर में, how do you feel, what is your experience about the store atmosphere. तो वो बोलेगा कि यार बेकार था. अब क्वेश्चनर में क्या लिखोगे, बेकार था ऐसा लिखोगे, राइट. या फिर वो बोलेगा कि यार बहुत मज़ा नहीं आया यार, क्राउडी था, ये था. तो अब यू वांट, वो बोलेगा बहुत मज़ा आया, मस्त एटमोसफियर था, क्या लिखोगे, मस्त लिखोगे. सो बेसिकली डू नॉट आस्क सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, राइट, विच आर सब्जेक्टिव बेसिकली, राइट. जो सब्जेक्टिव होती है, जो डिस्क्रिप्टिव होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके वी विल नॉट बी एबल टू पुट देम इन द आंसर. तो जब हम इनएबिलिटी टू आंसर की बात कर रहे हैं, राइट, बेसिकली तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीज़ें, वो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अ रिस्पोंडेंट विल नॉट बी एबल टू आंसर. तो रिस्पोंडेंट विल नॉट बी एबल टू आंसर, फिर से बता रहा हूँ, एक अबाउट विच द रिस्पोंडेंट इज़ नॉट इन्फॉर्म, दूसरा रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर, एंड तीसरा रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड और आर्टिकुलेट, राइट. तो हम जब क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड. तो रिस्पोंडेंट विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ही इज़ नॉट इन्फॉर्म, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछो. रिस्पोंडेंट मे नॉट बी एबल टू रिमेंबर, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो. एंड रिस्पोंडेंट मे नॉट बी एबल टू गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई कॉल overcoming the inability to answer, right. जब हम क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं, अब स्टेप में वापस जाते हैं so that you will be able to understand properly. देखो, पहला था specify the list of needed information, second specify the type of interviewing method, third
डिटरमाइन द इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट, जहाँ पे मैंने दो चीज़ें समझाई कि हमें हम जब इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट देखते हैं तो हम दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक ये है कि इस क्वेश्चन नेसेसरी, ज़रूरी है तो ही पूछो, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत पूछो, राइट। एंड दूसरा मैंने बोला था कि इज़ सेवरल क्वेश्चन रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ वन, अगर 2-3 क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है 2-3 पूछो, एक में मत ख़त्म करो। सो दैट इज़ डिसाइडिंग द और डिटरमाइन द कंटेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वेश्चन, राइट। चौथा स्टेप था डिज़ाइन द क्वेश्चंस टू ओवरकम द इनएबिलिटी ऑफ आंसर, राइट, और अनविलिंगनेस नॉट आंसर, कि रिस्पोंडेंट की इनएबिलिटी जो है, राइट, हमें ये देखना है कि हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने। वी हैव टू जस्ट इंश्योर दैट वी डोंट आस्क सर्टेन क्वेश्चन अबाउट विच रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर और रिस्पोंडेंट इज़ नॉट विलिंग टू आंसर, दोनों चीज़ें अलग है, राइट। रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर, कब एबल नहीं होता है? जब उसे पता नहीं होता है, ही इज़ नॉट इन्फॉर्म। दूसरा, जब वो याद नहीं कर सकता है, ही इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर। और तीसरा, जब वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ही इज़ नॉट एबल टू आर्टिकुलेट। तो राइट, डोंट आस्क क्वेश्चन which respondent is not aware about, don't ask question which respondent is not informed about, or don't ask question about which a respondent is not able to remember, and don't ask question about which a respondent is not able to describe, जिसके बारे में respondent describe नहीं कर सकता, जिसके बारे में respondent information आपको explain नहीं कर सकता, याद नहीं रख सकता, या उसको पता नहीं होता, ऐसी चीज़ें मत पूछो, right? So that is inability to answer of the by respondent, ऐसी चीज़ें जब respondent आंसर नहीं कर पाता है, right? अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बोला कि इनएबिलिटी टू आंसर, तो रिस्पोंडेंट 3 चीज़ें आंसर नहीं कर पाएगा। एक, जिसके बारे में उसको इन्फॉर्म नहीं है, दूसरा जिसके बारे में उसको पता नहीं, याद नहीं कर पाएगा, या तीसरा जिसके बारे में वो आर्टिकुलेट या डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। ओके, फिर मैंने बोला था अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी टू, ये दोनों चीज़ें अलग है, राइट। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट इज़ नॉट विलिंग टू आंसर, राइट। सो ओके, कौन सी चीज़ें रिस्पोंडेंट इज़ नॉट विलिंग टू आंसर, इसको जस्ट मैं समराइज कर रहा हूँ, राइट, कि ओके, respondent will not be able to answer the question which are sensitive topic, right। ये मैंने आगे का जो डिस्कशन है उसको मैंने एक में ले लिया है, राइट। रिस्पोंडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन विच आर सेंसिटिव, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात हो गई है, या जैसे कोई डिबेटेबल इश्यूज़ है, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात हो रही है, राइट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में बात हो रही है, रिलीजियस बारे में बात हो रही है, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है। कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक होते हैं जिसके बारे में रिस्पोंडेंट विल नॉट लाइक टू आंसर, राइट। सी, ही इज़ एबल टू आंसर बट ही इज़ नॉट विलिंग टू आंसर, दोनों में फ़र्क है। सो डोंट आस्क सच काइंड ऑफ सेंसिटिव टॉपिक इन द रिसर्च, राइट, रिमूव इट। देन प्रीफेस द क्वेश्चन विद अ स्टेटमेंट। अच्छा, काफ़ी बार ऐसा होता है कि द क्वेश्चन which basically a question which talks about specific behavior, इसको ज़रा मैं अलग तरीके से ले रहा हूँ, right, a question which are related to specific behavior, right। आप किसी को अपनी उसकी लेजीनेस के बारे में पूछोगे, आप किसी को उसके एंग्रीनेस के बारे में पूछोगे, right, तो he will not be able to answer, or he would not like to answer, right। तो don't ask a specific behavior question, right, a statement the behavior of interest, right, कि behavior या उसकी interest के कुछ ऐसे question होते हैं जो वो आंसर नहीं करेगा, don't ask it, right। then usually क्या होता है कि ask the question using third person technique। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सीधा डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, राइट, क्योंकि कुछ सेंसिटिव चीज़ें ऐसी होती है जो हम डायरेक्टली पूछेंगे तो वो आंसर नहीं करेगा, राइट, बट उसको हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं कि सपोज़ आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई रिलेटिव है, तो उसकी तरीके से आप पूछोगे तो ही वुड लाइक टू आंसर, राइट। तो डोंट आस्क सेंसिटिव क्वेश्चन, और अगर आपको सेंसिटिव क्वेश्चन पूछने हैं, राइट, तो ऐसे पूछो कि एज इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड पर्सन,
काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आपने मूवीज़ में देखा है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि खुद की बात करनी होती है बट हम किसी तीसरे बंदे को बीच में ला देते हैं, स्टोरी बनाते हैं. तो you know this is what should be done, right? And then he will be able to answer, right? काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उसको हम डायरेक्टली पूछने से बदले हम 2-3 क्वेश्चन के बीच में डाल देते हैं, राइट? पहले 2-3 के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड या सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर 3-4 सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो जब वो फ्लो में आता है ना, जब वो बोलना शुरू करता है, तो 3-4 सिंपल क्वेश्चन के आंसर दे दिए उसने, बाद में आप एक सेंसिटिव क्वेश्चन डालोगे तो ही विल बी एबल टू आंसर, राइट? बट इसके बारे में इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ बट लॉन्ग डिस्कशन. बट इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि रिस्पोंडेंट don't ask a question about which respondent is not able to answer, and don't ask question about which respondent is not willing to answer. Respondent जिसके बारे में बता भी नहीं सकता है और respondent जिसके बारे में बताना चाहता नहीं है, right? Don't ask this kind of question, right? So that is your step number 4. अब step number 5 में जाते हैं. Step number 5, as you can see here. Step number 5 is decide the question structure, right? अब हमें ये डिसाइड करना है कि what type of question structure are we going to use. Normally there are 2 types of question structure. One is what we call structured open-ended questions and close-ended question, right? There are 2 types of question, as you can see. There are 2 types of question, open-ended and close-ended. तो पहले मैं ओपन एंडेड की बात कर देता हूँ. ओपन एंडेड मीन्स द क्वेश्चन वेयर रिस्पोंडेंट हैज़ फ्रीडम टू आंसर, राइट? व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन? ओपन एंडेड क्वेश्चन मीन्स द क्वेश्चन वेयर respondent has freedom to answer. Respondent can answer in his own words, right? A question which respondent is able to answer in his own words. जैसे do you intend to buy a new car within 6 months, right? Yes, no, right? Yeah, simple पूछ लेते. What is your opinion about a newly launched car by Kia? I forgot that Kia has launched a new car, right? Kia Sonet, right? So suppose if you ask what is your opinion about a new car launched by Kia Sonet, right? नीचे लाइन छोड़ दो, अब उसको जो बोलना है बोलेगा, right? So when you are asking, when you are providing such kind of freedom to the respondent that he is able to answer, right, in his own way, that is known as open-ended question, right? तो हमें ये डिसाइड करना है कि आर वी गोइंग टू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन और आर वी गोइंग टू यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि बेसिकली उसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं. ओके, ओपन एंडेड को हम अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, राइट? बिकॉज उसका आंसर जो होता है वो रिस्पोंडेंट अपने हिसाब से देता है, राइट? उसका जो आंसर होता है दैट इज गिवन बाय रिस्पोंडेंट इन हिज ओन वर्ड, इन हिज ओन मैनर, राइट? कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. यू कैन इसके पीछे आप 4-5 लाइन भी लिख सकते हो. सो दैट इज ओपन एंडेड, राइट? यू आर फ्री टू आंसर द वे यू वांट. क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बोलते हैं, राइट? दे आर नोन एज क्लोज एंडेड. व्हाट इज क्लोज एंडेड? क्लोज एंडेड मीन्स अ क्वेश्चन वेयर ऑप्शंस आर गिवन टू द रिस्पोंडेंट, राइट? क्लोज एंडेड मीन्स क्वेश्चंस वेयर options are given to the respondent, right? Respondent has to give answer from the options, from the alternative only. जैसे yes no हो गया, जैसे multiple choice हो गया. जैसे ये देखो, अब this is a multiple choice question that do you intend to buy a car within 6 months, right? Definitely will not buy, probably will not buy, undecided, probably will buy, definitely will buy, others specify. तो ये क्या हो गया? ये this is a multiple choice, right? आपने 6 क्वेश्चन दे दिए, 6 या 5 ऑप्शन दे दिए, राइट? रिस्पोंडेंट हैज टू आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चंस ऑप्शंस ओनली, राइट? तो ये क्लोज एंडेड है. क्लोज एंडेड मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, राइट? एंड उसमें से ही आपको आंसर देने. अच्छा, क्लोज एंडेड के टाइप से देखो, ये मल्टीपल चॉइस इज वन टाइप ऑफ क्लोज एंडेड. तो शायद आपको लगेगा कि ऊपर मल्टीपल चॉइस लिखा है, सर क्लोज एंडेड बोल रहे हैं. तो क्लोज एंडेड के टाइप्स होते हैं, राइट? क्लोज एंडेड का एक टाइप है मल्टीपल चॉइस, दूसरा टाइप है डाइकोटोमस. डाइकोटोमस मीन्स डाई मतलब 2, राइट?
तो dichotomous means a question which has two answer, yes or no, right, या agree or disagree, right, जहाँ पे दो alternative होते हैं, right, आंसर या तो yes में होता है या no में होता है, right, तो that is basically what we call dichotomous question, और dichotomous is again kind of close-ended question, right. तो हमें ये डिसाइड करना है. अच्छा, अब एक और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जिसको हम स्केल बोलते हैं, लाइकर्ट पढ़े ना, लाइकर्ट स्केल, राइट, कि डू यू इंटेंड टू बाय अ कार विद इन 6 मंथ. अब ये स्केल दे दिया 1 2 3 4 5, आपको इधर टिक करनी है, तो दिस इज अ स्केल क्वेश्चन, बट स्केल इज अगेन अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट. तो स्केलिंग इज अगेन अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन. तो हम अब ये डिसाइड करते हैं, अब वापस हम स्टेज में जाते हैं, राइट. Decide the question structure, right, the format of question, right. Decide the question structure means we are deciding the format of question, right. And just when we are deciding the format of the question, we know that there are two types of question that we can ask. One is open-ended and second is close-ended. Open-ended is also known as unstructured question and close-ended is known as structured question, right. और क्लोज एंडेड की तीन टाइप जो है, क्लोज एंड, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. तो ओपन एंडेड मीन्स फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कैन आंसर इन हिज ओन वे, एंड क्लोज एंडेड मीन्स फ्रीडम इज नॉट गिवन टू द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट हैज़ टू आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. आपको वो ऑप्शन दिए गए, उसी ऑप्शन में से आपको आंसर करने हैं, दैट इज द रीजन वी कॉल इट क्लोज एंडेड. और क्लोज एंडेड के टाइप्स है डाइकोटोमस, मल्टीपल चॉइस, स्केलिंग टेक्निक, रैंकिंग क्वेश्चन होते हैं, राइट. आपको 10 ब्रांड दी गई है, राइट, सपोज यू आर गिवन 10 ब्रांड्स और आपको ये बोला गया है कि ये 10 ब्रांड में से कोई एक ब्रांड को अपने हिसाब से रैंक करो. तो बेसिकली जब आप ब्रांड्स को रैंकिंग देते हैं तो दैट इज़ अगेन बेसिकली व्हाट वी कॉल क्लोज एंडेड क्वेश्चन. जैसे 10 ब्रांड है, उसको नंबर 1 कौन सा दोगे, नंबर 2 कौन सी दोगे, तो दैट इज अगेन अ क्लोज एंडेड, बिकॉज वो 10 ही ब्रांड में से आपको आंसर करना है. अगर आपको 11वीं ब्रांड याद आए तो आप आंसर नहीं कर सकते, तो दैट इज क्लोज एंडेड. सो डिसाइड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वी गोइंग टू यूज. आर वी गोइंग टू यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चन और आर वी गोइंग टू यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन. सो दैट इज डिसाइडिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट step is deciding the question wording, which is very important topic, right. Decide the wording of the question. Okay, now what word are we going to use, right, in the question, that is very important, right. And when we are using the wording of the question, or when we are deciding the wording of the question, right, certain things that we should keep in mind. कौन सी चीज़ें? One, use ordinary words. Do not use very frenzy, very complex words in the question. मतलब keep the question as simple as possible. देखो, क्वेश्चन हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पूछते हैं, ना कि हमारी होशियारी दिखाने के लिए, राइट. जैसे ही देखो, डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज एडिक्वेट. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, उसके बदले सीधा पूछ लो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आर रेडीली अवेलेबल व्हेन यू बाय देम. अब सीधे दोनों फ़र्क है. दिस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट. ये तो फिर भी है, अगर इससे भी डिफिकल्ट बनाना चाहो, सपोज आप बोलो कि डू यू फील दैट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और द इंटरमीडियरी मैनेजमेंट ऑफ द कोका कोला इज़ एडिक्वेट. अब इंटरमीडियरी क्या होता है वो BBA करके भी काफ़ी लोगों को याद नहीं रहता है, राइट. अब किसी लेमैन को पूछोगे कि इंटरमीडियरी मैनेजमेंट, तो वो पागल हो जाएगा. इससे सीधा पूछ लो कि इज इट अवेलेबल, राइट, वेन एवर यू वांट टू बाय. तो दिस इज सिंपलेस्ट. यूज ऑर्डिनरी वर्ड्स, डोंट यूज जार्गन्स, राइट. जार्गन का यूज़ मत करो, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज़ करो. हाँ, एक और चीज़, यूज अनएम्बिग्यूअस. अनएम्बिग्यूअस मतलब, सी व्हाट इज एम्बिग्यूअस. एम्बिग्यूअस का मतलब होता है विच इज़ अनक्लियर, राइट, विच इज़ which has many meaning. Ambiguous मतलब एक वस्तु ना वो बड़ा मीनिंग था ना, that is known as ambiguous, right. जैसे अब देखो कि in a typical month how often do you shop in departmental store? Never, occasionally, sometime, often, regularly.
अब ये एम्बिग्यूअस इसलिए है बिकॉज मेरे लिए समटाइम्स और आपके लिए समटाइम्स अलग होता है, मेरे लिए ओकेशनली और आपके लिए ओकेशनली अलग होता है, मेरे लिए ऑफन अलग होता है, आपके लिए ऑफन अलग होता है, रेगुलरली फॉर मी वुड बी डिफरेंट एंड फॉर यू वुड बी डिफरेंट. सो एम्बिग्यूअस मीन्स फॉर मी द मीनिंग इज डिफरेंट एंड फॉर यू द मीनिंग इज डिफरेंट. समझे? तो इसकी वजह सिंपल ऐसा पूछ लो कि हाउ ऑफन डू यू शॉप फ्रॉम द डिपार्टमेंटल स्टोर. once in a month, I mean sorry, less than once, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 more than 4. तो सीधा नंबर ही पूछ लिया. तो इसमें मेरा मेरा ओकेशन कौन सा है और आपका ओकेशनल कौन सा है, मेरा समटाइम्स कौन सा है और आपका समटाइम्स कौन सा है, राइट, मेरा ऑफन कौन सा है और आपका ऑफन कौन सा है, वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा. सो यू नो, डोंट आस्क अनएम्बिग्यूअस, आई मीन सॉरी, डोंट आस्क एम्बिग्यूअस वर्ड, ऑलवेज आस्क अनएम्बिग्यूअस words, right? Use unambiguous words in the question, right? So that is choosing the right question in the questionnaire, right? एक use ordinary words, दूसरा use unambiguous words, तीसरा avoid leading or biased questions. ये क्या होता है बेसिकली? क्या होता है कि leading a question मतलब आप sometimes we are asking a question wherein the answer is provided into the question, right? लीडिंग का मतलब होता है द क्वेश्चन वेयर द आंसर इज प्रोवाइडेड, राइट. समझो कि जहाँ पे आंसर इज प्रोवाइडेड बाय द व्हाट आई कॉल क्वेश्चन इटसेल्फ. क्वेश्चन में ही आंसर कहीं पे आपको, आप यू आर लीडिंग टू द आंसर. समझो, राइट, यू आर लीडिंग टू द आंसर. सो दैट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल लीडिंग क्वेश्चन, राइट. अब लीडिंग क्वेश्चन में जैसे ये देखो कि लीडिंग क्वेश्चन इज द वन दैट क्लू टू द रिस्पोंडेंट टू व्हाट आंसर शुड बी. जैसे मैंने बोला ना कि आप क्लू दे देते हो, यू आर गिविंग क्लू टू द रिस्पोंडेंट दैट व्हाट शुड बी द आंसर. जैसे डू यू थिंक दैट अमेरिकन शुड बाय इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल. अब डू यू थिंक दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स आर आर इंजोरियस टू हेल्थ, राइट. आपने आंसर दे दिया यस, या एक क्लू दे दिया यस, राइट. तो व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, राइट, व्हिच इज ये देखो, डू यू थिंक दैट पैट्रियोटिक अमेरिकन शुड बाय इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल व्हेन दे वुड पुट अमेरिकन लेबर आउट ऑफ वर्क. अब ये क्या हो गया? आप एक क्वेश्चन ऐसा बना रहे हो, राइट. पैट्रियोटिक अमेरिकन्स, ये एक्चुअली अमेरिकन बुक है इसलिए आपको अमेरिकन, पैट्रियोटिक अमेरिकन शुड बाय इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल what when that would put American labor out of work. मतलब ये एक पैट्रियोटिज्म डाल दिया आपने बीच में, राइट. देशभक्ति नहीं बातों करना की अन बची होगी तो क्या खरीदूँ जो ये, तो नेचुरली पीपल वुड से कि वाई शुड वी बाय, राइट. तो उसके बदले सीधा पूछ लो कि भाई इम्पोर्टेड कार खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, isn't it? So that is leading question. मतलब हम आंसर की तरफ उसको क्लू दे देते हैं कि दिस शुड बी द आंसर. तो अवॉइड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट. तो हमें वी शुड नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, वी शुड नॉट आस्क अनएम्बिग्यूअस क्वेश्चन, वी शुड आस्क unambiguous question. We should use ordinary words and try to ask the question start with WH. तो आपको पता होगा, right? Use a WH question. मतलब जैसे ना define the issues in terms of who, what, when, where, why, right? ये होना चाहिए, right? कि always ask a question starts with W, right? Which is a right format in terms of grammar also. राइट. तो जब हम क्वेश्चन कंटेंट वर्डिंग की बात करते हैं, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टैप, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन वर्डिंग तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. एक, यूज़ ऑर्डिनरी वर्ड्स. दूसरा, यूज़ अनएम्बिग्यूअस वर्ड्स. तीसरा, डो नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन. एंड चौथा, यूज़ द वर्ड्स विच और यूज़ द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विद WH से शुरू होने वाला क्वेश्चन पूछो, राइट. ओके, तो अब देखो क्वेश्चन के वर्ड डिसाइड हो गए, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, राइट. अब मतलब अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए, राइट. वी हैव द स्ट्रक्चर. पहले हमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया कि ओपन एंडेड होगा या क्लोज एंडेड होगा. अब उसमें हमने कौन से वर्ड डालने हैं, राइट, कौन से शब्द यूज़ करने हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डिसाइडेड.
Now we have got the questions ready with us, right? Now the next step is arrange the question in the proper order. अब हमें क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में रखना है. We have to put the questions in a proper order, right? अब sequencing the question, right? Now what I mean by sequencing the question, right? तो now basically sequence, right? दिस शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द. आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है. कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए? तो फर्स्ट शुड बी ओपनिंग क्वेश्चन. ओपनिंग क्वेश्चन मतलब इंटरेस्ट के बारे में, उनके बेसिकली व्हाट डू दे लाइक, व्हाट डू दे डिसलाइक, राइट? उसके बारे में क्वेश्चन पूछो. दैट इज ओपनिंग क्वेश्चन. आपको सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है, इसकी मीनिंग में मत जाना. डोंट गो इन मच डिटेल, बट हाँ एक एक दो लाइन ठीक है लिख सकते हो इफ यू विश. तो determine the order, और order मतलब determine the sequence of the question. First should be opening question, मतलब ask simple interest वाला question. Second question should be type of information, मतलब basic information हम उनको पूछेंगे, right? कि कि हम क्या क्या information, हम वो क्या खरीदते हैं, right? वो क्या use करते हैं, what do they buy, what do they use, right? उसके बारे में हम पूछते हैं. तो that is इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, राइट? पहला ओपनिंग क्वेश्चन, दूसरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, तीसरा हम बोलते हैं, राइट? द थर्ड क्वेश्चन वी आस्क इज व्हाट वी कॉल, कहाँ गया, इसमें नहीं है, ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट? पहला ओपनिंग क्वेश्चन, दूसरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, और तीसरा होता है specific question. Now what is a specific question? Specific question means the questions related to your objectives, right? Questions related to your objectives, right? तो question को इन तीन सेट में रखना है. पहले कुछ क्वेश्चन होते, एक या दो क्वेश्चन होते हैं, वो ओपनिंग क्वेश्चंस होते हैं. दूसरे कुछ क्वेश्चंस होते, उसको हम इंफॉर्मेशन, मतलब जो हमारे काम के रिस्पोंडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं. और तीसरे, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आई वुड से दैट दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट? स्पेसिफिक मीन्स द क्वेश्चंस विच हेल्प इन गेटिंग द राइट इंफॉर्मेशन, राइट? So that is basically what we call deciding the question structure or arranging the question into the order, right? क्वेश्चन को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखना है, राइट? दैट व्हाट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द थर्ड क्वेश्चन. सो दैट इज डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, राइट? तो अब तीन टाइप के क्वेश्चन, मतलब सीक्वेंस के टाइम पे तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहला ओपनिंग क्वेश्चन होता है, दूसरा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होता है, एंड तीसरा होता है स्पेसिफिक क्वेश्चंस, राइट? सो दैट इज अबाउट deciding the sequence of the question. Then identify the form and layout. अब ये क्या है? What is form and layout? अब देखो हमारे पास क्वेश्चन की सीक्वेंस भी बन गई, अंडरस्टैंड, राइट? क्वेश्चन की सीक्वेंस भी बन गई. देखो इधर से पहले से शुरू करते हैं. इंफॉर्मेशन का लिस्ट बना दिया, फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम कौन सी इंटरव्यू मेथड यूज़ करेंगे. फिर इन दोनों के बेस पे हमने ये देखा कि इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट क्या होना चाहिए. उसमें दो चीज़ें हमने डिसाइड की कि ज़रूरी नहीं है तो क्वेश्चन निकाल दो. फिर ये देखो कि दो के बदले में एक, मतलब एक के बदले में दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन की ज़रूरत है तो वो डालो, राइट? इज सेवरल क्वेश्चन रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ वन, राइट? तो दैट इज़ determine the content of the individual question. फिर do not ask the question which respondent is not able to answer or which respondent is not willing to answer. फिर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिसाइड किया, as I said that स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. फिर हमने क्वेश्चन के वर्ड डिसाइड किए. तो वर्डिंग में मैंने बोला कि यूज़ ऑर्डिनरी वर्ड्स, डू नॉट यूज़ जार्गन्स, राइट? फिर मैंने बोला कि WH वाले क्वेश्चन पूछो, राइट? लीडिंग क्वेश्चन मत पूछो, राइट? तो दैट इज़ क्वेश्चन वर्डिंग. एम्बिग्यूअस टाइप के वर्ड यूज़ मत करो, अनएम्बिग्यूअस वर्ड यूज़ करो. सो दैट इज़ क्वेश्चन कंटेंट और वर्डिंग हमने डिसाइड किया, नॉट कंटेंट, वर्ड्स डिसाइड किए. फिर हमने क्वेश्चंस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में डाला, एक प्रॉपर ऑर्डर में डाला.
राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हमने सीक्वेंस डिसाइड किया. अब हमारे पास एक क्वेश्चनर रेडी हो गया. नाउ वी आर रेडी विद द क्वेश्चनर. नाउ identify the form and layout. Form and layout means now decide upon the design and layout and the look of the questionnaire, right? Now identify the form and layout means now decide the design and the look of the questionnaire. मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चनर जो होता है, राइट, उसमें मल्टी कलर पेजेस यूज़ होते हैं, राइट. कुछ पहला पेज वाइट कलर का होता है, दूसरा पेज येलो कलर का होता है, तीसरा पेज पिंक कलर का होता है, डिपेंड. वो बहुत एडवांस सर्वे होते हैं, उसमें ऐसा होता है. उसके सिवा हमें ये देखना है कि फॉर्म एंड लेआउट मीन्स वी हैव टू डिसाइड द फॉन्ट साइज टू बी यूज इन द क्वेश्चंस. कौन सी साइज़ के क्वेश्चंस होंगे, राइट. हमें उसका लेआउट मतलब उसका लुक कैसा होगा, राइट. किस टाइप के फॉन्ट होंगे, एरियल होंगे, टाइम्स न्यू रोमन होंगे, बहुत सारी चीज़ें. मतलब we have to decide the look of the questions, right? What should be the look and what should be the size of the questionnaire, what should be the color of the questionnaire, what should be the font style of the questionnaire, what should be the font size of the questionnaire. So that is basically what I call form and layout, the look of the questionnaire, right? और जब हम layout की बात करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत important है in deciding the layout. There should be ideal space, right, समझो. There should be ideal space between two questions as well as options of the two questions, right. There should be ideal space between two questions and options of the two question. दो क्वेश्चन के बीच में और दो क्वेश्चन के ऑप्शन के बीच में स्पेस होनी चाहिए, नंबर 1, राइट. दूसरी बात ये है कि बेसिकली देयर शुड बी लेजिबल वर्ड्स, मतलब दिखे ऐसे फॉन्ट होने चाहिए, बोल्ड फॉन्ट होने चाहिए, राइट. सो दैट इज़ फॉन्ट शुड बी लेजिबल, राइट. बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए. रिजनेबल फॉन्ट साइज शुड बी देयर, राइट. एंड देयर शुड नॉट बी ओवर स्पेसिंग, देयर शुड नॉट बी अंडर स्पेसिंग. बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम स्पेस भी नहीं होनी चाहिए, राइट. ऐसा एक क्वेश्चनर का लुक होना चाहिए. सो दैट इज़ डिसाइडिंग द फॉर्म एंड लेआउट, राइट. नाउ अब रिप्रोड्यूस द क्वेश्चनर, मतलब बेसिकली अब क्वेश्चनर के प्रिंट निकालते हैं. दिस इज़ रिप्रोड्यूस द क्वेश्चनर मीन्स जो भी हमने फॉर्म और लेआउट डिसाइड किया है उसके बेस पे क्वेश्चनर इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म. अब क्वेश्चनर की प्रिंट निकालते हैं. क्वेश्चनर इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म एंड अब लास्ट स्टेप आफ्टर द क्वेश्चनर इज रिप्रोड्यूस इनटू द फिजिकल फॉर्म. सॉफ्ट कॉपी में से उसको हार्ड कॉपी में डालते हैं. एंड अब एलिमिनेट बग्स मतलब एरर्स, एलिमिनेट बग्स बाय प्री टेस्टिंग. नाउ व्हाट इज प्री टेस्टिंग? प्री टेस्टिंग को हम बोलते हैं पायलट टेस्टिंग. Pilot testing means basically it's a trial kind of survey done to check the error of the questionnaire, right. हम क्या करते हैं? What is a pilot testing? Pilot testing is a trial survey to check the error of the questionnaire. हम क्या करते हैं कि questionnaire में कोई error है कि नहीं है, right. उसको हम check करने के लिए हम एक small sample size, right, by doing the survey on a smaller sample size, right, by doing the survey on a smaller sample size, we try to find out that whether the errors are there in the questionnaire or not, right. What is the respondents feeling when they are when they are coming across the questionnaire. जब respondent questionnaire fill करते हैं तो उनकी feeling क्या होती है, राइट, उनका ओपिनियन क्या होता है. दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई कॉल पायलट टेस्टिंग. तो पायलट टेस्टिंग इज द सर्वे बाय टेकिंग द स्मॉल सैम्पल्स, राइट. सर्वे बाय टेकिंग द स्मॉल सैम्पल्स सो दैट वी कैन रिड्यूस द एरर ऑफ द क्वेश्चनर, राइट. अगर पायलट टेस्टिंग करके जब हम सपोज 30 या 50 लोगों का सर्वे करते हैं, राइट, एंड हमने 50 लोगों का सर्वे किया एंड बाय डूइंग सर्वे ऑफ द 50 पीपल, सपोज इफ वी कम टू नो दैट एवरीथिंग इज़ फाइन
राइट, देयर आर नो एरर्स फाइंड इन द क्वेश्चनर, राइट, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चनर थियोरेटिकली बहुत साउंड होता है, बट प्रैक्टिकली जब हम मार्केट में लेके जाते हैं, राइट, वी कम टू नो कि हाँ दिस काइंड ऑफ एरर्स आर देयर, रिस्पोंडेंट को कुछ आंसर देने में तकलीफ होती है, राइट. तो अगर इफ रिस्पोंडेंट फाइंड सम प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चनर, देन वी हैव टू रिमूव द एरर, राइट, फ्रॉम द क्वेश्चनर. अगर प्री टेस्टिंग मतलब पायलट टेस्टिंग में हमें लगा कि देर आर सम प्रॉब्लम्स faced by the respondent, right, in filling the questionnaire, there are some problems faced by the respondent in filling the questionnaire, then we will remove the errors. But if suppose there are no problems, right, if everything is fine, respondent don't find it any problem in filling the questionnaire, then we will not be able to then there is no need to rectify the questionnaire. That means the questionnaire is fine, respondent को कोई problem नहीं लगा, and we will continue with the same questionnaire for final research, right. So that is questionnaire design process. I hope everything is fine and you go with the process thoroughly. बहुत लंबी process थी, I know, but still if you have any doubt you can ask me, you can WhatsApp me. All the best.